How are you all? I hope you all are doing very well. So welcome to the science class. I am a digital science mentor and today we are going to start a new chapter, chapter number 6, that is combustion and flame. We use different kind of fuels at home for running automobiles and in industries. Fuel is a substance that burns in air to produce energy in the form of heat and light. We use fuels like cow dung, kerosene and LPG at homes, CNG, diesel, petrol, running automobiles and coal to produce electricity in thermal power plants. You must have seen that some substances burn with a flame like candles, where others like coal do not. Let us now study the process of burning in detail. So students, आपने अभी तक समझा कि हम different kind of fuels को घरों में use करते हैं. किस लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए और इंडस्ट्रीज में. जैसा कि हमें पता है कि फ्यूल एक सब्सटेंस है जो कि एयर में बर्न करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड एनर्जी. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द एनर्जी, हीट और लाइट जो होती है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म होती है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ combustion. So combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and gives off heat and light. When you heat a piece of charcoal by bringing it in near a Bunsen burner, it burns in air producing carbon dioxide, heat and light. So combustion एक chemical process है जिसमें क्या होता है, कोई भी substance ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. जैसे कि जब आप चारकोल का पीस बंसन बर्नर के पास लाओगे तो वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा एयर में. So now let's see an amazing fact. In our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. So यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट है कि हमारे शरीर में जो फूड होता है वो भी क्या होता है? ब्रोकन डाउन. दैट मीन्स फूड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे हीट प्रोड्यूस करता है. So now you can see here some pictures which show burning of charcoal. Now next picture is burning of magnesium. Substance can be classified as combustible or non-combustible depending on whether they burn or not. अब हम देखेंगे substance के दो types, that is combustible and non-combustible. So now let's see combustible substances. Substances that can burn easily are called combustible substances. A combustible substances can be solid, liquid or gas. Charcoal, magnesium, ribbon, kerosene, diesel, petrol, LPG, wax, paper, cloth, wood, etc. are some example of combustible substances. You will be surprised to know that food is a fuel for our body. So combustible substances वो substance होते हैं जो कि एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं. जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्लॉथ, वुड, पेपर and many are the examples given in your book which are combustible substances. और आप ये जान के सरप्राइज होंगे जो फूड होता है वो भी एक टाइप का फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए. So now let's see the next non-combustible substances. Substances that do not burn in air are called non-combustible substances. So वो substance जो कि air के presence में नहीं जलते हैं वो क्या होते हैं? Non-combustible substances. और कुछ examples जैसे sand, water, glass and cement are the non-combustible substances. So after that there are some activities in your book which you have to perform. So now let's see the next topic, that is conditions necessary for combustion. So now let's see one activity. Here you can see the activity and let's start to do this activity. इस activity को try करते हैं. First, fix a lighted candle on a table. आपको एक टेबल लेनी है, उस टेबल पे एक जलता हुआ कैंडल रखना है. Now after that cover it with a chimney or rest it on a few bricks so that air can enter the chimney and observe the flame. So उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एक उस कैंडल को चिमनी से कवर कर देना है और फ्लेम को ऑब्जर्व करना है. Now remove the brick so that the chimney rest on the table. So leaving no space for air to enter from the below. Observe the flame. Now cover the top of the chimney with the glass again.
Again, watch the flame, note down your observation. You have to cover the chimney. Cover with the chimney. After that, you have to cover the top. Now you have 3 pictures you can see here on the board. Now, what are you observing in this picture? So, now you can see that in candle A, candle burns freshly as air enters the chimney from the below. आप देख सकते हैं कि ए पिक्चर में कैंडल क्या है, वो फ्रीली बर्न कर रही है एयर में, क्योंकि एयर क्या कर रही है, एंटर कर रही है चिमनी के नीचे से. नाउ कैंडल इन बी, flame flickers and produces smoke as no airs enter the chimney from the below. पिक्चर बी में क्या हो रहा है कि फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रही है बिकॉज एयर जो है वो एंटर नहीं कर पा रहा है चिमनी से. नाउ पिक्चर सी में आप क्या देख रहे हैं, फ्लेम एग्निशेस एज नो एयर इज अवेलेबल. आफ्टर दैट जो फ्लेम होती है वो पूरी तरीके से बुझ जाती है. क्यों? क्योंकि कोई भी एयर वहां पे नहीं आ पा रही है. तो हमारे पास 3 कंडीशन है जिसमें एयर आ रही है तो कैंडल अच्छे से जल रही है. दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि फ्लेम जो है वो फ्लिकर कर रही है क्योंकि एयर का अमाउंट वहां पे कम हो चुका है. और थर्ड पिक्चर में क्या हुआ है कि वहां पे कोई एयर ही नहीं बची है, इसलिए फ्लेम बुझ चुकी है. So this activity clearly shows that the air is necessary for the combustion. Paper and wood do not burn by themselves. You need to burn paper with a burning matchstick. Matchstick will not burn wood. You have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal. This shows that different substances catch fire at different temperatures. जैसे कि हमें पता है कि पेपर और वुड क्या होते हैं, वो खुद से नहीं जलते हैं. हमें क्या करना पड़ता है, उस पेपर को बर्न करना पड़ता है मैचस्टिक के थ्रू. अब आपको पता है कि मैचस्टिक तो आग लगा नहीं सकती लकड़ी को. हम क्या करेंगे, हमें केरोसिन ऑयल की जरूरत होती है फायर को स्टार्ट करने के लिए. ओके, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हर सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर होता है फायर को कैच करने के लिए. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर. A substance starts burning only after it has attained a certain minimum temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire is called the ignition temperature. Different substances have different ignition temperature. A matchstick does not catch fire on its own. It immediately catches fire when rubbed against a rough surface. Various substances like coal, wood, LPG, kerosene do not catch fire on their own. These substances need a spark or matchstick to burn them. हमने ये देखा कि हर सब्सटेंस का अलग अलग टेम्परेचर होता है फायर को कैच करने के लिए. हमें उस मिनिमम टेम्परेचर तक जाना होता है फायर को बर्न करने के लिए. जो लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर फायर बर्न होती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. हर सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है. और मैचस्टिक के केस में खुद फायर कैच नहीं करती है, हमें क्या करना होता है कि एक रफ सरफेस के थ्रू उसे रब करवाना होता है, देन फायर प्रोड्यूस होता है. और केरोसिन, वुड, एलपीजी के केस पे भी होता है कि वो डायरेक्ट एयर में फायर कैच नहीं करती है, उसका भी एक इग्निशन टेम्परेचर होता है फायर को कैच करने के लिए. Substances like alcohol, petrol, LPG and synthetic fibers catch fire easily. This is because these substances have low ignition temperature. They are said to be inflammable substances. जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी और सिंथेटिक फाइबर वो आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं बिकॉज इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, इसलिए हम इन्हें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी बोलते हैं. This activity will show that a substance does not catch fire at a temperature below its ignition temperature. Take 2 paper cups. In case you do not have paper cups, fold a sheet of paper to form cups. Here you can see the picture. You have to fold a paper like this. Pour about 50 ml of water and one of the cup. Now hold the 2 cups separately over the 2 candle flames as shown in the diagram. Here you can see that. You observe. The empty paper cup catches fire and start burning. The cup containing water does not catch a fire. The water in it becomes hot. You can even boil water in it if heating is continued.
सो जैसे कि आपने देखा कि जो पेपर कप खाली था उसने आसानी से फायर कैच कर ली, बट जिस पेपर कप में वाटर था उसने फायर कैच नहीं करी, बल्कि उसमें वाटर जो है वो हीट होने लगा। एंड अगर फायर कंटिन्यू होता तो क्या होता, वाटर बॉईल भी होने लगता। The candle flame raises the temperature of the empty cup above ignition temperature, hence it catches fire. कि अभी हम देख चुके हैं कि जो ignition temperature था वो ज्यादा हो गया था, so इस वजह से क्या हुआ था कि फायर कैच हो गई थी, and the heat supplied to the paper cup gets transferred to the water by conduction. and जो दूसरे पेपर कप में जो वाटर था उससे क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफर हो रही थी। एज अ रिजल्ट द पेपर कप डज नॉट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो जो हीट थी, जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करवा रहे थे बाय अ फायर, वो वाटर के पास जा रहा था, इसलिए वाटर क्या हो रहा था, हीट हो रहा था, और कभी भी वो पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर गया ही नहीं, इसलिए वो पेपर ने फायर कैच किया भी नहीं। इसलिए ये रीजन है कि जो पेपर है वो बर्न नहीं हुआ। Thus, we see that the necessity condition for combustion are presence of combustible substances. That means combustible substance का सबसे पहला होना जरूरी है। Second, presence of supporter of combustion, and combustion के supporter का होना भी जरूरी है। Adequate supply of a supporter of a combustion, that is oxygen, is necessary. मतलब बिना ऑक्सीजन के तो हमें पता है कि हमने पहले जो एक्टिविटी करी थी कि बिना ऑक्सीजन के फायर पॉसिबल नहीं है। एंड अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, एंड फॉर कैचिंग अ फायर उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना भी जरूरी है। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर से लो रहा, उस इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लो रहा, तो कभी फायर कैच होगी ही नहीं। सो दीज आर सम कंडीशंस टू कैच द फायर। नाउ लेट्स सी, combustion is of two types. First is a complete combustion and second is your incomplete combustion. Now let's see complete combustion. When the supply of oxygen is sufficient, the substance will burn completely. That means जब ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट होता है तो जो सब्सटेंस होता है वो completely burn हो जाता है। Next is a incomplete combustion. When the supply of oxygen is inadequate, the substance does not burn completely and combustion is said to be incomplete. That means जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनएडिकेट होती है, जो सब्सटेंस होता है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, उसी को हम इनकम्प्लीट कंबशन बोलते हैं। एंड दिस कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, soot, water, heat and light. Thus we see that a number of pollutions are produced. Complete combustion is less polluting. जब complete combustion नहीं होता है तो उसमें से हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सूट, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, जो कि ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज करती है। इसीलिए कहते हैं कि जो कंप्लीट कंबशन होता है वो लेस पॉल्यूटिंग होता है। कंबशन इज एन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। और कंबस्टिबल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, मोस्ट ऑफ देम आल्सो प्रोड्यूस लाइट, इट also produces carbon dioxide and water. जो combustion होता है वो irreversible chemical reaction होता है। All chemical reactions, जो सारे chemical reactions होते हैं वो heat produce करते हैं और ज्यादातर उनमें से light भी produce करते हैं, और it also produces carbon dioxide and water. Now let's see controlling fire. As we have seen that for a fire, three conditions are necessary. The fire can be extinguished if any one of these three conditions are not fulfilled. So, अब हम देखेंगे कि हमें फायर को बर्न करने के लिए 3 कंडीशन जरूरी होती है फायर के लिए, एंड अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फायर क्या हो जाएगा, एग्निश हो जाएगा। लेट्स सी, बाय कटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई काट दें तब भी फायर नहीं होगी। एंड बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस, अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव कर दें तब भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। बाय लोअरिंग द टेम्परेचर बिलो द इग्निशन पॉइंट, और अगर हम इग्निशन पॉइंट टेम्परेचर से टेम्परेचर को लो कर दें तब भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। फायर इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। So first is let's see, by spraying water. So when water is sprayed over a burning substance, it brings its temperature down below the ignition point and the fire is put off. So अगर आप पानी को छिड़केंगे तो उससे क्या होगा, जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा, राइट?
अगर हम पानी को छिड़केंगे तो क्या होगा, जब हम जलते हुए किसी भी सब्सटेंस पे पानी को छिड़कते हैं तो उस जलते हुए सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर से वो टेम्परेचर कम हो जाता है, राइट, एंड जो फायर होती है वो बंद हो जाती है. वाटर वेपर फॉर्म्ड ड्यू टू द हीट of the fire cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. So here you can see a picture of fire brigade. So now do not use the water over burning kerosene, petrol or diesel. This is because oil is lighter than water. They will form a light layer on water. The fuel will continue to spread along with water. Water also should not be used in electrical fires. Water is a conductor of electricity and can cause electrocution. Here you can see the picture in which a fireman extinguishes the fire with the help of water. So अभी हमने देखा कि हमें वाटर का यूज नहीं करना चाहिए केरोसिन और ऑयल के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑयल होती है वो लाइटर होती है वाटर से. सो केरोसिन जो होता है वो मतलब जो भी ऑयल्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं और जिससे कि आग जो फायर होती है वो स्प्रेड होने लगती है. सो हमें कभी भी वाटर को नहीं यूज करना चाहिए इन द ऑयल. सो नाउ लेट्स सी द अमेजिंग फैक्ट. डू यू नो व्हाई अ पर्सन whose clothes have caught fire, it is wrapped in a thick blanket. The blanket helps in cutting off the supply of oxygen. क्या आपको पता है जब कभी भी किसी भी आग लगती है तो किसी भी पर्सन को कंबल से क्यों ढका जाता है? क्योंकि जो कंबल होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देती है, जिससे कि फायर क्या हो जाती है, इग्निश हो जाती है. So now let's see the next topic, that is use of fire ignition. So the best way of dousing fire involving electrical equipment or inflammable substances is by spraying carbon dioxide. Carbon dioxide, being heavier than oxygen, envelops the fire and cut off the supply of oxygen. The fire thus ignites in absence of the supporter of combustion. Generally, carbon dioxide also doesn't harm the electrical appliances. Here you can see the picture of fire ignition. So, क्या होता है किसी भी फायर को अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर इन्वॉल्व है तो उस फायर को बंद करने का सबसे बेस्ट वे है कि हम फायर इग्निशन का यूज कर सकते हैं. किस तरीके से? क्योंकि फायर इग्निशन में कार्बन डाइऑक्साइड फुलफिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो ऑक्सीजन से हैवी होती है जो कि फायर को बुझा देती है. कार्बन डाइऑक्साइड can be stored at high pressure as a liquid in cylinders, just as LPG is stored in a cylinders. When carbon dioxide is released from the cylinder, it expands a lot and envelops the fire, beside also bringing down the temperature of the fire. जो ऑक्सीजन होता है उसे हम हाई टेम्परेचर पे एज अ लिक्विड सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम एलपीजी को सिलेंडर में स्टोर करते हैं. सो जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है गैस से, सो वो एक्सपेंड होती है और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है. सो वो क्या करती है, फायर को एनवेलप कर लेती है, जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को, फायर के टेम्परेचर को नीचे ले आता है. एंड जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाइडली यूज की जाती है एज अ फायर इग्निशन, आग को बुझाने के लिए. सो नाउ अनदर टाइप ऑफ इग्निशन इज soda acid fire ignition. In this type, sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid are present in two compartments in the fire ignition. When the ignition is used, the two come in contact with each other, producing carbon dioxide. So दूसरा तरीका जो आग बुझाने का है वो है सोडा एसिड फायर इग्निशन. इस पे क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को दो कंपार्टमेंट्स में स्टोर करा जाता है फायर इग्निशन के अंदर, और जब फायर इग्निशन को हम यूज करते हैं तो दोनों गैसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं और क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है जो कि एज अ इग्निशन है. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ कंबशन. So there are three types of combustions. First is a rapid combustion, then spontaneous combustion and explosion. So now let's see rapid combustion. In this type of combustion, large amount of heat and light are produced in a very short span of time. Examples are combustion of LPG, kerosene and petrol.
रैपिड कंबशन में क्या होता है कि इनमें लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है और बहुत ही कम टाइम में ये फायर कैच कर लेती है और लाइट हीट प्रोड्यूस करती है, और इसका एग्जांपल है एलपीजी, केरोसिन एंड पेट्रोल। नाउ लेट्स सी spontaneous combustion. In this type of combustion, substances suddenly burst into flame on their own without application of any apparent cause. Examples: white phosphorus which burn in air at room temperature. इस टाइप के कंबशन में, स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि फायर जो होती है वो अपने आप फ्लेम में बर्स्ट हो जाती है बिना किसी एप्लीकेशन को यूज करे, और इसके एग्जांपल है व्हाइट फास्फोरस जो कि रूम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर लेती है। At times, spontaneous forest fires are caused due to the heat of the sun or due to the lightning striking. कई बार फॉरेस्ट में स्पॉन्टेनियस फायर लग जाती थी। इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो सन से हीट प्रोड्यूस होती है वो भी इसका कारण है, और जो लाइट स्ट्राइकनिंग होती है वो भी इसका कारण है। Now, this mainly occurs due to the extreme heat of the summer. और ये किस वजह से होती है? क्योंकि गर्मी की जो एक्सट्रीम हीट पड़ती है उसकी वजह से फायर कैच कर लेती है। फॉरेस्ट फायर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और बल्कि जो जंगलों में आग लगती है उन्हें तो कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। मैनी फॉरेस्ट फायर लाइक टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, लाइक नॉट इग्निशिंग कैंपफायर कंप्लीटली बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ विजिट। और कई बार ऐसे हादसे तो ह्यूमन बींग्स की वजह से ही होते हैं। इसका रीजन क्यों है? कैंपिंग के दौरान जो उन्होंने फायर लगाई होती है वो लीव करते वक्त, वहां से जाते वक्त उस फायर को पूरी तरह से एग्निस्ट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार स्पॉन्टेनियस फायर लग जाती है फॉरेस्ट में। Spontaneous fire in coal mines can take place due to spontaneous combustion of coal dust. और कई बार कोल माइंस में भी स्पॉन्टेनियस फायर लग जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कोल डस्ट में कंबशन प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्लोजन। In this type of combustion heat, light and sounds are produced and accompanied by a liberation of large amount of gas. इस टाइप के कंबशन हीट में क्या होता है कि लाइट और साउंड दोनों प्रोड्यूस होती हैं और अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी प्रोड्यूस्ड होता है। Burning of fireworks is an example of explosion. Explosion can also be take place if pressure is applied on the cracker. इसमें इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो फायरवर्क बर्स्ट करते हैं वो भी एक टाइप का एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि उसमें लाइट, हीट एंड साउंड ये तीनों प्रोड्यूस होती है, और कभी कभी प्रेशर की वजह से भी इनमें एक्सप्लोजन प्रोड्यूस्ड होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्लेम। Different flames burn with a different colors. A matchstick burns with a yellow flame, whereas an LPG burns with a blue flame. Magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. So जो different flames होते हैं वो different colors के साथ बर्न करते हैं। जैसे कि मैचस्टिक जो होती है वो येलो फ्लेम के साथ बर्न करती है, वहीं पे जो एलपीजी होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है, और जो मैग्नीशियम रिबन होती है वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है। And you can also see a picture of these three types of flames with different colors on the screen. So now here you can see that the first picture shows that matchstick, the second picture is a flame of kitchen stove, and third is a burning of magnesium ribbon. Now kerosene lamp has a yellow and smoky flame but has the blue of smokeless flame when burned in a stove. सो केरोसिन जो ऑयल होती है उसमें येलो एंड स्मोकी फ्लेम होती है, बट उसके पास एक ब्लू एंड स्मोकलेस फ्लेम भी होती है जब हम स्टोव को जलाते हैं। फ्लेम इज अ रीजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस। Color of a flame depends upon the temperature, amount of available oxygen and the nature of the combustible substance. So flame एक रीजन होता है जहाँ पे कंबशन होती है, और जो फ्लेम्स का कलर होता है वो टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और वहां पे कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एंड नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस की उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। Only solid and liquid fuels which vaporize on heating burn with a flame. Now kerosene, that is liquid fuel, and wax, that is solid fuel, both vaporize during burning and form flames.
जैसे कि केरोसिन हम जानते हैं एक लिक्विड फ्यूल होता है और जो वैक्स होती है वो एक सॉलिड फ्यूल होती है। जब उन्हें हम जलाते हैं तो वो क्या होता है, वेपराइज होता है। कब? जब फ्लेम्स बन रहे होते हैं। चारकोल डज नॉट वेपराइज एंड हैंस डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम। जो चारकोल होता है वो वेपराइज नहीं होता है और फ्लेम भी प्रोड्यूस, फ्लेम के साथ वो बर्न नहीं होता है। However, all the gases combustible substances burn with a flame. जितने भी गैसेस combustible substance होते हैं वो फ्लेम के साथ जलते हैं। और and you can also see a picture of kerosene lamp and the second picture is a candle flame. So now after that there are some activities in your book, you can perform it. So now let's see the next topic, that is zone of a candle flame. A candle flame has 3 different color zones depending on the amount of oxygen available. So candles के अंदर 3 different कलर जोन्स होते हैं और ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि हर डिफरेंट लेयर पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ different parts of a candle. Outermost non-luminous zone, that is blue, this is the hottest part of the flame. This zone emits very little light. जो कि outermost non-luminous zone है वो क्या करती है, वो सबसे ज्यादा hottest part होती है flame की और बहुत ही little amount of light produce करती है। In this zone wax undergoes completely combustion because there is a plenty of oxygen around it. और इस जोन में क्या होता है कि जो कंबशन होता है वो कंप्लीट अंडरगो होती है। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। नाउ लेट्स सी द मिडल जोन। दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस। जो मिडल जोन होती है वो ब्राइट होती है, येलो होती है, ल्यूमिनस होती है। इट इज लेस हॉट देन द आउटर मोस्ट जोन and hence there is incomplete combustion of water vapor due to the oxygen. जैसे कि हमें पता है कि जो मिडल जोन होती है वो ब्राइट येलो लुमिनस होती है, ये लेस हॉट होती है आउटर जोन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट लो होता है, इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस करती है। कार्बन पार्टिकल्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड होते हैं और ये जो जोन होता है ये क्या करता है, ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू outer zone. Now let's see the next zone, that is your inner zone. This is the dark zone. It is the coolest part of the flame. ये जो होती है ये dark zone होती है और ये सबसे ठंडा part होता है flame का। Since oxygen is not available in this zone, no combustion take place है। और यहाँ पे जो inner zone होती है इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती, इसलिए जो combustion होता है वो भी टेक प्लेस नहीं करता है। दिस जोन इज डार्क एंड एमिट्स नो लाइट। और ये जो जोन होता है ये डार्क होती है और कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई गोल्डस्मिथ यूज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस जोन। अब आप समझ ही रहे होंगे कि गोल्डस्मिथ जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट क्यों यूज करता है किसी भी फ्लेम का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है जिसकी वजह से जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। So now let's see the next topic, that is fuel. In the previous chapter we have studied about what is a fuel. Now let us learn some qualities about a good fuel. Substance that produce heat and light on burning like wood, charcoal, petrol, kerosene etc. are called fuel. जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में देख ही चुके हैं कि फ्यूल क्या होता है, राइट? फ्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। सो अभी हम देखेंगे क्वालिटीज। ओके, सो आफ्टर दैट हमें पता है कि जो वुड, चारकोल और पेट्रोल, केरोसिन होते हैं वो जलने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट, लाइट, राइट? वो जो कि हमारे फ्यूल्स होते हैं। सो नाउ लेट्स सी अ गुड फ्यूल इज वन दैट इज इजीली अवेलेबल एंड चीप। अब हम देखते हैं गुड फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। वो जो कि इजीली अवेलेबल भी हो और चीप भी हो, दैट बर्न्स इजीली इन एयर एंड अ मॉडरेट रेट, और वो जो कि आसानी से जल जाए एक मॉडरेट रेट पर। नाउ दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो कि ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। जो एक गुड फ्यूल वो भी होती है जो कि कोई पॉइजनस एंड इरिटेटिंग फ्यूम्स को प्रोड्यूस ना करे, एंड दैट लीव्स नो ऐश ऑन बर्निंग, और जलने पे कोई ऐश भी प्रोड्यूस ना करे, एंड हुज इग्निशन टेम्परेचर इज अबव
रूम टेम्परेचर, और जिसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अबव हो, वो भी एक गुड फ्यूल होता है. सो these are the some properties of good fuels. Remember, there is no fuel which can be considered an idle fuel. So इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं होता जिसे हम आइडल फ्यूल की तरह कंसीडर कर सकें. So now let's see the type of fuels. So now here you can see a table in which solid, liquid and gaseous fuels are given. In the solid fuels, you can see that coal, coke, cow dung, wood and charcoal. These are some type of solid fuels. Now let's see liquid fuels, that is kerosene, petrol and diesel. Now gaseous fuels are natural gas, LPG, coal, biogas and petroleum gas. So I hope you have understood the type of fuels. So now let's see fuel efficiency. The amount of heat produced on complete combustion of a kilogram of fuel is called calorific value. जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल के बर्न होने पे, दैट इज योर कैलोरिफिक वैल्यू. और द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कैलोरिफिक वैल्यू इज किलो जूल पर ग्राम और पर किलोग्राम और किलोग्राम. तो स्टैंडर्ड यूनिट भी आपको पता चल गई होगी, किलो जूल पर ग्राम और पर ग्राम किलो जूल. ओके, the higher the calorific value of a fuel, the more heat is produced when burned. So जिसका जितना ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू होता है वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है जब हम उन्हें बर्न करते हैं. Now you can see here the table in which calorific value of different fuels are given. So now let's see the next topic, that is hazards of burning fuel. Burning fuels produce harmful products. With increase in population, the fuel consumption has also increased with harmful effects on the environment. जैसे कि हमें पता है कि फ्यूल्स को बर्न करने पे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है, एंड हमारे एनवायरमेंट्स में भी इनके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि जब हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो उससे हमारे एनवायरमेंट को क्या होगा, हाँ, एक तरीके से हार्म भी तो पहुंचेगा. So now let's see carbons containing fuel like wood, coal, petroleum when burst release unburned carbon particles. These fine pollutants cause air pollutions leading to respiratory disease and asthma. जैसे कि हमें पता है कार्बन कंटेन कुछ हमारे पास फ्यूल्स हैं, जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम. जब हम इनको जलाते हैं तो क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और इनसे हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स, इनसे हमारे एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, जिससे कि लोगों की रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है एंड उन्हें रेस्पिरेटरी डिसीज और अस्थमा भी हो जाता है. नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज सॉलिड फ्यूल्स इज आल्सो लीव बिहाइंड एश which if not disposed of properly can cause air and water pollutions. So जैसे कुछ solid fuels होते हैं जो कि क्या करते हैं, जलने के बाद एश प्रोड्यूस करते हैं. अगर उन्हें सही तरीके से डिस्पोज नहीं करा गया तो क्या होंगे, हमारे एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन को बढ़ा सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट incomplete combustions of fuels give carbon monoxide gas. Exposure to it can lead to headache, dizziness and can even cause coma and death. This is why we should not burn coal in a closed room or sleep in a room with burning of coal fire in it. जैसे कि हमें पता है कि इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल्स का क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से हेडेक, डिजीनेस और कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि डेथ एंड कोमा. और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी सोते वक्त बंद रूम में कोल को नहीं जलाना चाहिए. Combustion of fuel releases carbon dioxide in the environment, which leads to an increase in temperature on the earth. This causes global warming. Global warming is the rise in temperature of the earth's atmosphere. जैसे हमें पता है कि जब हम कंबशन का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना, राइट.
Global warming adversely affects the monsoon. It causes excessive melting of polar glaciers, which leads to rise in the level of water in seas and oceans. This is turn can cause floods in coastal areas and submerging of low-lying areas. जैसे हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इससे मॉनसून भी क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, राइट। एंड उसकी वजह से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की वजह से वो जब ग्लेशियर पिघलेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगा एंड लेवल ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा ओशन में सीज में, एंड जिसकी वजह से फ्लड भी आ सकता है कहाँ पे, कोस्टल एरियाज में, और इसकी वजह से काफी नुकसान भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट। बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस sulfur dioxide gas and nitrogen oxides. These gases react with water and oxygen, produce acids which fall on the earth as acid rain. Acid rain is harmful to the plants, buildings, soil and aquatic life. It is highly acidic and corrosive. It is due to acid rain that मार्बल स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल हैज कॉरोडेड। जैसे हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल और कोल के जलने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एसिड रेन के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में होती है। और एसिड रेन बहुत हार्मफुल होती है प्लांट्स, बिल्डिंग एंड सॉइल और एक्वेटिक लाइफ के लिए। और यही एक कारण है कि जो ताजमहल का स्ट्रक्चर है, मार्बल स्ट्रक्चर, वो क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, कॉरोडेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स। फ्यूल इज अ सब्सटेंस व्हिच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे हमें पता है फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस है जो जलने पे एयर में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो बर्न एयर के प्रेजेंस में बर्न होते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू एक्निश फायर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पानी को यूज करते हैं आग बुझाने के लिए। However, water cannot be used to extinguish electrical or oil fires. बल्कि हम कई बार पानी को यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स को बुझाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। हमारे पास कई टाइप के कंबशंस हैं, जैसे रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। अ कैंडल फ्लेम हैज 3 zones, non-luminous zone, luminous zone and dark zone. And next point is burning fuels produce many harmful substances. फ्यूल्स को जलाने पे काफी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा। एंड जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं किसके, फ्यूल्स के, वो क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि अस्थमा। कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। कंबशन करने पे जब हम फ्यूल्स का कंबशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच पॉइजनस। Incomplete combustion of fuels releases carbon monoxide gas which is poisonous. हमें पता है कि फ्यूल्स के इनकम्प्लीट कंबशन पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि पॉइजनस होती है। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, स्टैचूज एंड सॉइल। और जो एसिड रेन होती है वो क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, स्टैचूज के लिए और ऑयल्स के लिए हार्मफुल होती है। सो नाउ लेट्स सी सम कीवर्ड्स। द फर्स्ट कीवर्ड इज combustion. Combustion is a chemical reaction which involves the burning of fuel in the presence of air or oxygen that is accompanied by the production of heat or both heat and light. हमें पता है कि combustion एक chemical reaction है जिसमें जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, राइट। और कंबशन ध्यान रखिएगा हमेशा एयर के प्रेजेंस में होती है और इसकी वजह से हीट एंड लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। In the lowest temperature at which a substance spontaneously ignites in a normal atmosphere is called the ignites temperature or kindling point. So वो lowest temperature जिस पे कोई भी substance spontaneously ignite हो जाती है in a normal atmosphere, उससे उसका ignition temperature बोलते हैं।
Next keyword is your inflammable substances. Substances which catch fire or exposure in air are called inflammable substances. वो substances जो air के presence में तुरंत fire catch कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? Inflammable substances. Next is your calorific value. The amount of heat released on complete combustion of 1 kg of fuel is known as calorific value of a fuel. So जब हम 1 kg of fuels को combust करते हैं, so that means combustion of 1 kg of fuel, and जो amount of heat produced होती है उसे हम calorific value कहते हैं. So I hope you have understood all of these topics, keywords, right? So that's all for this chapter. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, revise this chapter and keep learning. Thank you.